Welcome friends to Biomechanics Coach. And today's episode again you will get 3 universal principles which is applicable in each and every sport. If you get these 3 in your body, or if coaches are watching, if you get these 3 qualities in your athletes, nobody can stop you from winning medals. These 3 principles are universal. These are applicable in each and every sport. Get them in your body. It is there in your body, just you have to sharpen them. मैं आपको 3 बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूँ. अगर आप ये 3 बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स अपने रूटीन गेम में ले आते हैं, ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं, जस्ट आपको उसको तराशना है, देन आपको मेडल जीतने से कोई नहीं रोक सकता. तो प्लीज वॉच फुल वीडियो टिल एंड so that you can get these 3 in your mind and then in your body. So number 1. First one is a stretch shortening cycle. It is one of the most important biomechanical quality which is in you, and if you adapt to use them on daily basis in your game, then you have won the half battle. Stretch shortening cycle एक ऐसी क्वालिटी है बायोमैकेनिकल क्वालिटी जो आपके अंदर है, जस्ट आपको उसको तराशना है, और जितना जल्दी आप उसको अडेप्ट करेंगे उतना बढ़िया आपके गेम के लिए होगा. और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस क्वालिटी इज दैट इट हेल्प्स यू टू मिनिमाइज योर एनर्जी यूज एंड मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस. तो ये क्या है तो आपको बताते हैं. बेसिकली इट इज साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस. अब 3 तरह की मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर देयर. वन इज eccentric, one is concentric, and one is isometric. Now when you do eccentric contraction, that means lengthening of your muscles, or when you do concentric contraction, that means shortening of your muscles, and amortization phase or isometric when there is no change in the length. अब इन तीनों का जो साइकिल है is known as stretch shortening cycles, एंड ये हर एक मेजर मसल आपके एप्लीकेबल है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि इसमें आप क्या करते हैं, दिस इज इन सिंपल टर्म्स स्प्रिंग एबिलिटीज ऑफ योर बॉडी. जैसे आप जंप लगाते हैं, सो इन जंप देयर इज फुल लेंथ ऑफ मसल चेन्स इन्वॉल्व. आपके मसल्स at your knee joint, muscles at your ankle joint, muscles at your hip joints, all are involved so that you can do that movement. Now if at each of these joint muscles have ability to utilize this stretch shortening cycle, and if you utilize it, then that you will increase your spring ability. इसमें होगा कि आपका when you do counter movement jump, जब भी आप जंप करते हैं, you make a counter movement, lengthening of muscles आप करते हैं in the opposite direction. जैसे counter movement jump, जैसे आप फिगर में देखिए, he will bend, he will give a dip, so this dip is called counter movement and it is opposite to the main direction. main direction आपके क्या है, जंप लगाना ऊपर. And when you are throwing, for example, जैसे मुझे थ्रो करना है कुछ, so I will do like this. I have to throw there, but I will go back side, and this dip on the back side. This is counter movement. तो ये फर्स्ट फेज है साइकिल की, जिसमें हम करते हैं lengthening of the muscles, and it is known as eccentric contraction. Now after this, you will have some pause, and this pause is amortization, जिसमें आपकी lengthening भी नहीं हो रही, shortening भी हो रही, and during this should be shortest in you. मतलब इस साइकिल में ये छोटा होना चाहिए. Shortest this amortization phase is, faster your SSC will be. Okay,
So after that you will do the movement, you throw the ball or you make the jump, that is concentric contraction. अब ये जो हो रहा है eccentric, फिर amortization and then concentric, these three phases are known as stretch shortening cycle. अब इसमें जो फर्स्ट फेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आप जितना ज़्यादा फोर्सफुली बेंड करेंगे अपने मसल्स को, जॉइंट्स में मूवमेंट लेकर आएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, प्री स्ट्रेच जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स आपकी। अब ये मसल्स के बीच में एक क्वालिटी है, हमारे पास टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज टेंडन, दैट कनेक्ट्स योर मसल्स टू योर बोन्स, एंड दिस इज इलास्टिक, हाईली इलास्टिक tissue of your body, and this has main advantage, it will store your elastic energy. जो भी आप प्री स्ट्रेच में फोर्स लगा रहे हैं वो ये जो टेंडन्स हैं उसको स्टोर कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या, व्हाट इज एडवांटेज? एडवांटेज इज इन द नेक्स्ट स्टेप जब वो अमोर्टाइजेशन होगी एंड यू विल डू उसके बाद concentric contraction, then this energy which you have stored in your tendons वो आपको बूस्ट देगी सेकेंड थर्ड फेज में, फाइनल फेज में, जब आपने concentric contraction करनी है, when you have to do concentric contraction, this lasting energy will help you, you don't have to waste your own energy, इसमें आपकी एनर्जी बचेगी, the energy you have to use only once, you have to use your force only once, that is during pre-stretch, उसमें आपने किया, it gets stored in your tendons, and then in the next phase when you are doing concentric, this force will be released and you will get jump or you will get a throw very fast. जितना efficient आपका ये movement होगा SSC, उतना बढ़िया आपकी movement होगी, उतना अच्छा throw होगा, उतनी ऊंची आपकी jump लगेगी. So that is the thing. Simple. If you have spring, if you press it in the more way, more harshly, it will jump. Now number two. Number two is your minimization of energy used to perform tasks. Basically simple इसका है meaning कि you have to reduce unnecessary movements when you are performing a particular task, and this will generate when you do more of your practice. This is another second biomechanical principles कि जिसमें आपको unnecessary movements को हटाना है. जैसे आपने थ्रो करना है, इन थ्रो यू शुड फोकस ऑन काउंटर मूवमेंट एंड स्ट्रेट मूवमेंट, दिस इज इट। इंस्टेड ऑफ उसके बाद आपने ट्रंक इधर उधर की मूवमेंट नहीं हिलानी है, उस पर फोकस नहीं करना है। इनिशियली जब भी आप कुछ नई मूवमेंट तैयार करवाते हैं अपने एथलीट्स को या एथलीट्स नई चीज़ सीखते हैं, देन देयर आर मैनी अननेसेसरी मूवमेंट्स इन्वॉल्व इनिशियली, जब उनको लिए वो नया चीज़ है, when they are performing for the first time. So principle क्या है कि you have to by practice reduce that unnecessary movements and become master of the key movements. So this is the second principle, that you have to minimize your energy by reducing your unnecessary movements. So this is again second universal principle. And the third one is control of redundant degree of freedom in the segmental chain. The third principle is reduction of degrees of freedom. अब degrees of freedom क्या है? Basically mechanics में degree of freedom is the ways in which different configurations are there in which the body can move. सिंपली कहा जाए, जैसे हमने बॉल थ्रो करनी है, अब इसमें ये मूवमेंट हो रहा है, हमारी सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका फ्लेक्शन हो रहा है सिंपली। अब इस फ्लेक्शन में मसल्स इन्वॉल्व हैं जॉइंट के साथ और वो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, फ्लेक्शन हो रहा है। अब हमारी बॉडी के अंदर देयर आर मल्टीपल्स मतलब वेज, अब ये तो मैंने इन विच दिस कनेक्शन आर हैपनिंग। कनेक्शन कौन सा? अब हमने फोर्स प्रोड्यूस करनी है यहाँ पर, तो कनेक्शन किस कनेक्शन में बता रहा हूँ? न्यूरो मस्कुलर कनेक्शन। हमारा दिमाग सब कुछ सिग्नल दे रहा है, तो वो ही पहले कनेक्शन नर्व से कनेक्टेड है, आपस में कोऑर्डिनेशन है, जैसे मैं चाहता हूँ हिलाता हूँ, क्योंकि सब कोऑर्डिनेटेड है। और जितना आपका वेल ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा आपकी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या है? द वे दिस ब्रेन इज कनेक्टेड टू योर जॉइंट्स and muscles,
एक मोटर यूनिट होता है ना, पूरा नेटवर्क है हमारी बॉडी में, हर एक मसल, हर एक जॉइंट कनेक्टेड है हमारे नर्वस सिस्टम से थ्रू मोटर यूनिट्स। अब ये कई तरह के हैं, कई तरह से हैं, एक नहीं है कि बस एक हमारा यहाँ से तार जा रही है और इधर लग रही है, नो, दे आर मल्टीपल। और जब आप मूवमेंट करते हैं तो अपने आप ब्रेन चूज करता है कौन सा कनेक्शन हमने लगाना, और वो मूवमेंट होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम यही है कि कितने मल्टीपल कनेक्शन है एक चीज़ के अंदर, एक पर्टिकुलर मसल चेन में, एक पर्टिकुलर चेन मूवमेंट में, जहाँ पर मसल चेन ऑफ मसल्स इन्वॉल्व, एक पूरी मसल्स की चेन इन्वॉल्व है और उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। तो कौन सा पाथ हमारा सिग्नल लेता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो जितने वो पाथ ले सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो प्रिंसिपल क्या है बायोमैकेनिक्स का कि हमने ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस दैट, वी हैव टू मेक इट सिंपल। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब आप ट्रेनिंग करते हैं, बार बार एक मूवमेंट को करते हैं, और जब कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हम अपने। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? कोई मूवमेंट आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ सिखाई जाती है किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट में, तो उसमें बेसिकली ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है बायोमैकेनिकली कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपने कम करना है। जो फालतू के पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कम करने का फ़ायदा क्या होगा? अब सिंपल सी एग्जांपल आपको देते हैं। अब आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचना है और आपके पास एक सीधा रास्ता है ए टू बी, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक घूम के जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है। तो देयर आर मल्टीपल आपके सामने रख दिए। अब जब इतने रास्ते हैं, पहुंचना आपने बी पर है, तो सबसे बढ़िया क्या होगा कि आपको मालूम हो कि ए से बी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता सीधा चले जाइए, वो है। घूम के जाइएगा, देन यू विल हैव टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज। तो ये है। तो ये आपको पहली बार में नहीं पता लग सकता। आपको जब आप ट्रेनिंग करेंगे आपको पता लगेगा कि इतने सारे पाथवेज हैं अपने। एक तो आप देख के कर रहे हैं, जब आपको इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी आपको बिना देखे पता लगेगी हमें ये पाथ फॉलो करना है, तो वो कहते हैं आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कम कर दिया। मतलब इतने सारे मल्टीपल रास्ते थे, आपने एक रास्ता ढूंढ लिया और अपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे यहाँ से निकलना है। इससे आपकी एनर्जी कम लगेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर लिया और मूवमेंट को सिंपल बना दिया और दिमाग को भी आसानी करवा दी कि आपने वो चीज़ उसी पाथवे से करनी है। तो दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इन योर मूवमेंट्स, और ये हर एक गेम में एप्लीकेबल है। तो जितनी आप ट्रेनिंग करेंगे उतने ही जो आपके कनेक्शंस हैं मसल्स के साथ आपके ब्रेन के, तो आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि जो सबसे बढ़िया और फास्टेस्ट रूट है आपके मसल को एक्टिवेट करने के लिए और फोर्स प्रोडक्शन के लिए, तो उस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज, और वो जो मूवमेंट है सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने व्हेन यू ट्रेन योर ब्रेन बाय ट्रेनिंग, दैट सिंपली मीन्स यू आर रिड्यूसिंग unnecessary degree of freedoms. So in simple terms में क्या है? In humans we have multiple degree of freedoms to do any task. Now the summary of all these three principles once again. Number one, use of stretch shortening cycle. Do it now. And you can improve this by using plyometric training, जिससे आपका स्ट्रेच, जो प्री स्ट्रेच वाली जो एक्सरसाइज है वो आप करेंगे तो यू विल हैव गुड एबिलिटी टू यूज योर स्प्रिंग एबिलिटीज. सो दिस इज द नंबर वन that will make you more efficient biomechanically. Number one principle. Number two, minimization of energy. Reduce unnecessary movements in your sport and focus on the key movements. And third principle, reduction of degree of freedoms in your movements. हर एक मूवमेंट करने का in our body there are multiple ways, and these ways are connections between your brain and your muscle and joints. There are multiple ways they can do it, but you have to do training. आपको training करनी है and you have to train your brain to the fastest path so that you can
do it just like that. So these are the 3 principles which are applicable to each and every sport you play. Try from now कि you have to engage these things. आपको ये तीनों चीज़ें अपने अंदर, ये तीनों बायोमैकेनिकल क्वालिटीज़ लेकर आनी है. पहली, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल इस्तेमाल करना है. नंबर 2, अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करना है. एंड नंबर 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कम करना है. तो ये 3 प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहा जाता है इनको. एंड वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग इन योर गेम, डेफिनेटली यू विल बिकम बायोमैकेनिकली एफिशिएंट एथलीट. होप आपको क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट, just comment below, and if you are using these 3 principles, then also let me know, and if you are not using, then also let me know in the comments yes, we are using it or we are not using it. So these are the 3 principles you should always keep in mind, and coaches, train your athletes these 3 universal principles, and these will help them to become biomechanically efficient athletes. Thank you. Signing off.